बोलिए। नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मैं नूर आलम। अभी मैं फिलहाल हूँ खानाकुल अंचल में, और जैसा कि आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल के तकरीबन 8 से 10 जिले सैलाब के जद में आए, और इस सैलाब को कहीं ना कहीं मैन मेड सैलाब कहा गया, क्योंकि जिस तरह से डीवीसी जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का जो पानी छोड़ा गया और पश्चिम बंगाल के कई एक जिलों में जिस तरह से बाढ़ आई और लोग क्षतिग्रस्त हुए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बाढ़ आए कितने दिन हो गए, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं खानाकुल एरिया में। यहाँ पे जो स्थानीय लोग आप देख सकते हैं, और फिलहाल अभी मेरा पैर का अंदाजा देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे पानी लगा हुआ। ये अंचल पूरा पानी से डूबा हुआ है और काफी गरीब लोग हैं। तकरीबन यहाँ पे 1000 से ज्यादा घर है, तकरीबन अंदाजा से 50 से 1000 ज्यादा लोग हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐड इन तक नहीं पहुंच पाया है। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, उन बच्चों के लिए खाने पीने की असुविधाएं हैं, खाने की बहुत सी तकलीफें हैं। और सबसे बड़ी बात होता है, जो सैलाब आता है तो उससे बीमारियां होती है, और सबसे जो गंदे पानी पीने से जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन कहीं नहीं होता है। अब इस अंचल में ऐसा आप देख रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है, पानी लगा हुआ है, और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग गंदा पानी, जो पोचा जल बंगला में कहते हैं, पीने के लिए मजबूर है। बच्चे को वही पानी पिलाया जा रहा है। वो कई एक सामाजिक संस्थाएं आती हैं, हम लोग भी यहाँ पे आए थे, सामाजिक संस्था आई थी, उन्होंने भी, हम लोगों ने देखा कि ऐड दिया है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 400, 500, 1000 लोगों के लिए ऐड लेकर के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 50,000 लोग हैं। मैं अपने चैनल के व्यूअर से, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, आप अगर देखेंगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो इन तक पहुंचे और इन जरूरतमंदों की मदद करें, और इन जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करें। आइए स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बात कर लेते, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा। মাসি, যেদিন জল এসেছিল কতটা আপনাদের ছিল জল, এখন কত অবধি রয়েছে? এখন এতটা এই দে মাসি ভালো করে বলছে। হ্যাঁ, এখন তখন ছিল এতটা, এখন হয়েছে এতটা। আবার কত কোন জায়গায় সোঁতর কাটছে হাঁড়ি নিয়ে নিয়ে। খাবার দাবার মাসি কেমন খাবার হচ্ছে? দাবার যা ঘরে ছিল খুদগুড়ো তাকিয়ে খেয়েছি। এখন কি খাচ্ছে? এখন যা আছে তাকিয়ে মেরে কেটে খাচ্ছে। আবার কোত্থেকে না আসবে আমাদের? আপনাদের এখানে কিছু প্রশাসন থেকে, পঞ্চায়েত থেকে কিছু এসছে? কিছু প্রশাসন থেকে না কিছু আসে না, একটু তিরপল ফিরপল দেখে শুনে একটা একটা দিয়েছে লোককে। তিরপল দিয়েছে হ্যাঁ, গরুদেরকে রাখার জন্য। হ্যাঁ, বাঁধে ফুঁদে আছে। খাবার ফাবার কিছু এখন দেয় না আমাদেরকে, কিছুই দেয় না। একটা পানসিও দেয় না, একটু জলও দেয় না, কি করবে? যাদের ঘরে বাচ্চা আছে দিদি, ওদের তো আরো অসুবিধা। হ্যাঁ, অবশ্যই অসুবিধা তো হবে। অসুবিধা হলেও কি কেউ দেখছে এই সমস্যাটা? কেউ কি বুঝছে? এই যে আমাদের ওখানে 3 মানুষ জলেতে একটা পানসিও নেই, কোনো নৌকোর ব্যবস্থা নেই। সেখানে মানুষরা কিভাবে সাঁতরে যাবে? 2 দিন বাড়ি থেকে বেরোতেই পারে না। তারা কিভাবে জল খাবে, কিভাবে আর খাবার দাবার কিভাবে সঞ্চয় করবে? প্রশাসন থেকে কি আপনারা রিকোয়েস্ট করবেন, আগ্রহ করবেন? প্রশাসন থেকেও তো আমরা চাই যে এরকম বন্যা আসলে মানুষের পাশে থাকাটা সবারই দরকার। মানে পঞ্চায়েত থেকে বলো আর যেখান থেকে বলো, যে যারা সাহায্য করছে তাদের মানুষের পাশে থাকাটা অন্তত দরকার। তুমি কি পেয়েছেন আপনারা? না, খাবার পাইনি আমরা। জল পেরি কি করে আসবো? তবে তো পাবো। শেষ হয়ে গেল। মানে যারা আছে ওই উপরে গিয়ে, হ্যাঁ, ও পরিষা পেয়েছে, আমরা তো পাইনি। এই তো বিস্কুট, বাচ্চাদের তার বিস্কুট নিয়ে যাচ্ছি। তারা কি করে নিয়ে আসবো বাচ্চাদেরকে জল পেরিয়ে? আমরা তো পাইনি কিছু, আমরা যেমন পাই জানো। যখন থেকে এখানে ফ্লাড এসেছিল, আপনারা কি অ্যাড পেয়েছে, কি সাহায্য পেয়েছেন? আমরা কিছু সাহায্য পাইনি। আমরা লাভপাড়ায় আছি দাদা, আমরা কিছু সাহায্য পাইনি। আমরা খুব কষ্টের মধ্যে, বাচ্চারা তারা কান্নাকাটি করছে বিস্কুট খাওয়ার জন্য। পঞ্চায়েত থেকে কোনো অ্যাড দেওয়া হয়? পঞ্চায়েত থেকে যে দিবা এসেছে খুব কম, সে তারা যারা বাঁধে ওই দিকেই তারা পেয়েছে। আমরা এইদিকে লাভপাড়ার দিকে আমরা কেউ পাইনি। কেউ পায়নি? না 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 না, আমরা কটা বস্তু খুব কষ্টের মধ্যে পেয়েছি। খাবার দাওয়া কেরম হচ্ছে? খাওয়া দাওয়া খুবই কষ্টের মধ্যে, আলু ভাতে, এই শুধু ভাত কি ডাল ভাত এইরকম খেতে পাচ্ছি। এখানকার যে স্থানীয় এমএলএ অথবা কেউ পয়সাওয়ালা কেউ আপনাকে সে কম যে দিবা দিয়েছে সব বাঁধেতেই পেয়েছে। বাঁধে এসে দিয়ে চলে গেছে? হ্যাঁ, যারা স্লিপ দিয়ে হয়তো পেয়েছে, কেউ পায় না কারণ সব লোকে স্লিপ দেয় না। আমাদের বাড়িতে আমরা 7টা লোক আছি। আমরা বিস্কুট পেয়েছি। এই তো বাড়িতে কে কে আছে আপনার? বাড়িতে আমরা 7 জন আছি। আমাদের বাড়িতে অনেক লোক, আমাদেরকে যেখানে দাঁড় করে রাখলো, স্লিপ দেবো, মাল দেবো, আমি গাড়ি নিলাম, মাল নিয়ে বাড়ি চলে গেল, আমরা বাকি রয়ে গেল। আপনাদের বাড়িতে কি জল আছে? হ্যাঁ, আমরা তো একটা করে প্রায় আসছে, চলো না দেখে আসবেন। যাচ্ছি আমরা। খেতে পাচ্ছি না। কত বয়স বাচ্চা? এই 10-11 মাসের বাচ্চা। 11 মাসের বাচ্চা? হ্যাঁ, তো কিছু 11 মাসের বাচ্চা। আর এমনই জল আমাদের অথই হয়ে গেছে, আমরা কোথাও বেরোতে পারছি না। আমরা যেমন বাচ্চাদের সামলাতে পারছি না, দরকার বাঞ্জল খাই রাখছি বাচ্চাকে। সর্দি হয়ে গেলে, শরীর খারাপ হয়ে গেলে কোথাও পাচ্ছি ওষুধ বাচ্চাদের যে খাবো? জলগুলো ওই নরমাল জলই খাওয়ানো হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই জলই খাওয়ানো হচ্ছে। পুরো কল মাল সব ডুবে গেছে, কোথায় পাবো?
এবার আমরা যে কোনো এ করে আমাদের এ করে খাচ্ছি, বাচ্চাদের তো ভুলতে পারছি না। এখানে যে আপনারা পঞ্চায়েতের লোক আছে ওরা কিছু না পঞ্চায়েতে হচ্ছে ওখানে তো এখান থেকে বেরোতে পারলে তো হয়তো ওইখানে যেতে পারবো বাঁধে, এমনকি লোক ভগত কিছু ব্যবস্থা নেই। কত লোক আছে এখানে ওইখানে মোটামুটি 1000 এই টাকাটা করে অনেক। আচ্ছা আপনার এইদিকে 1000 ঘর আছে? হ্যাঁ 1000 ঘর আছে, হ্যাঁ তো আমি 1000 বলেছি, 1000 বাড়ি আছে এখনো। বাড়ি আমার বাড়িটা ডুবে আছে এখনো, এখন আমার বাড়ি ডুবে আছে, এখন আমার বাড়ি ডুবে আছে। তারপরে এই বাচ্চাকে নিয়ে আমরা ওই জন্য ওই বাঁধে একটা লোক দেয় না কিছু দেয় না, আমরা এই বাচ্চাকে নিয়ে বাঁধে উঠতে পারছি না। কোন রকম এই বাচ্চাকে নিয়ে আমরা টাইম কাটাচ্ছি। যাওয়ার আসার মধ্যে তো ওই আছে পড়ে গেলে তো বাচ্চাদের ওই তো ওখানেই তো দেখতে পেলেন আপনি, বাচ্চা সামালতে নিজেই আমি হতে ইয়ে হয়ে গেল, সামালতে পারলাম না। যেসব শুকনো এলাকা আছে ওই বাঁধ এলাকায় কোনো নৌকা টোকার ব্যবস্থা নেই। এখানে স্থায়ী প্রশাসন যে আছে এখানে ওই বাঁধেতে কোনো রকমের রান্না খাবার দিচ্ছে, যারা যেতে পারছে সাঁতরে খেতে পারছে, যারা না যেতে পারছে খেতে পারে না। জলটা পর্যন্ত এখানে বিশেষ করে মানুষের এখানে যেটা আছে প্রয়োজন জল, সেই জলটুকু পর্যন্ত এখানে নলকূপ গুলো সব অনেক জলের নিচে ডুবে আছে। আমরা চাষের কাজ করি এখানে পরিবার করে চালছে। এখানে পরিবার কেরম চলে আপনার ঘর মানে এখানে যেসব এখানে খাওয়া দাওয়া বলতে কি এখানে শুকনো মাল যদি কোথা থেকে আসে যদি পেরোতে পারে সেই খাওয়া দাওয়ায়, এখানে কোনো কিছু ব্যবস্থা নেই। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से हम लोगों ने कवरेज दिखाया। खानाकुल ज़िला का एक गांव है जहां पे 1000 से ज़्यादा घर हैं और मेरे पास ये घर है। घर की हालत आप देख सकते हैं। कहावत है कि कभी भी कुछ भी हुआ है, किसी भी दौर में हुआ है, हर दौर में गरीब लोग ही उससे सफ़र करते हैं, गरीब लोग उससे मुतासिर होते हैं। चाहे गर्मी हो, गर्मी से देखेंगे गर्मियों के दिनों में लोग गर्मी से मारे जाते हैं, सर्दी के दिनों में देखेंगे सर्दी की वजह से गरीब लोग मारे जाते हैं। और जिस तरह से बरसात का कहर होता है, बरसात में भी लोग बेघर हो जाते हैं और मारे जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में 10 जिलों में जिस तरह से बाढ़ का कहर आया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के पानी रिलीज करने के बाद, और जिस तरह से घरें क्षतिग्रस्त हुई, लोग परेशान हाल हुए, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हम लोग भी नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन खानाकुल इलाके में एक गांव में जब हम लोग आए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन पर देखा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और रास्ते पे हम लोग जब चल रहे हैं, एक घर है, जिसका घर थोड़ा पक्का का है वो ठीक है, और जिनका घर कच्चे का है आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा, उस घर का टॉप फ्लोर तक पानी जा चुका था। अब इस घर का अंदाजा देख सकते हैं किस तरह से क्या हालत है, घर में रहने लायक नहीं है। जो लोग हैं आसपास अगर कोई पक्के का मकान है, उस पक्के के मकान के छत पर है, नहीं तो इसके पास जहां हम लोग ने अपने गाड़ी को पार्क किया, एक बड़ा सा बांध है, ऊंचाई पे सड़क है, उस पे लोग रहने के लिए मजबूर है। लेकिन दर्द और दुख की बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी प्रशासन से या स्थानीय नेतागण से कोई इस तरह से मदद इनको ऐड नहीं मिली। हाँ, मदद मिली है, वो भी कुछ लोगों को, तो बस तिरपाल जो सर ढकने के काम आ रहा है। उसके अलावा कई एक महिलाओं से हम लोगों ने बातें करी, उनका कहना था कि उनको तिरपाल तक नहीं मिला है, खुली जगह पे रात को सोने पे मजबूर हैं। अगर किसी तरह से कहीं मौका मिल जाता है तो किसी पक्के के मकान में रह करके, वो भी छत के हिस्से में रह करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। जैसा कि मैंने बताया कि हर दौर में गरीब लोग ही परेशान हाल हुए हैं, गरीब ही उससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अभी जो हम लोग इस गाँव का जो मुशाहदा किए, जो हम लोगों ने घूमा, देखा, कवरेज किया, वहाँ पर 10-12 घर ऐसे मिले जो पक्के के मकान थे और ज़्यादातर घर है कच्चे के मकान है। अब जो लोग हैं, किसी का अच्छा ताल्लुकात है तो पक्के वाले मकान में रहने के लिए मजबूर है, या तो बांध पे ऊंचाई पे रहने के लिए मजबूर है। कुछ लोगों को मिला है तिरपाल, उस तिरपाल के जरिए बांध के ऊपर टेंट बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर टेंट के भी रह रहे हैं, बांध के ऊपर जा करके रह रहे हैं। और सबसे दर्द की बात है, आप देख रहे हैं जिस तरह से पानी लगा हुआ है, आप देखते होंगे जब हम लोग शहर में रहते हैं, जब बारिश के दिन आते हैं तो जो पंप का पानी होता है वो काफ़ी गंदा गिरने लगता है, पीने के लायक नहीं होता है। और हम लोग वो भी पानी को फिल्टर करके पीते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा ले, खानाकुल इलाका का गरीब लोग, जिस तरह से एक महिला जब बोलते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी, उनके बच्चे के बारे में जब वो बता रही थी कि आज पोचा जल बंगला में बहुत ही गंदा पानी कहा जाता है, वो गंदा पानी अपने बच्चों को पिलाने के लिए मजबूर है। अब सोच लीजिए, एक माँ जब अपने बच्चे को उस तरह का पानी पिला रही है तो कितनी मजबूर होगी कि पिलाने के लिए उसको साफ पानी तक नहीं है, खाना तो दूर की बात है। आज गरीब लोग यहाँ पे मजबूर, बेहाल, बेयारो, मददगार पड़े हुए हैं। सरकार और प्रशासन से उस तरह से मदद नहीं मिल रही है जैसे मदद मिलनी चाहिए। सरकार रोना तो रोती है, लेकिन हर घर वालों, हर गरीब, हर मजबूर के पास पहुँच नहीं पाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर से गुजारिश करूँगा, अगर आप देख रहे हैं, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप भी इन
लोगों की मददगार हो। आप पता करें कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल के तकरीबन 8 से 10 जिलों में, खासकर जो हुगली जिला, बीरभूम, खाटाल, इन सब जगहों पे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, लोग बेहाल हैं, उनकी मदद करें। एक बहुत पुराना एक मुकालमा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करोबों में। अल्लाह ने आपको दिया है तो आपका नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। आप आइए, गरीबों की मदद कीजिए और इन जैसों की मदद कीजिए। इन जैसों को मदद करने से कहीं ना कहीं अल्लाह खुश होगा और आपको आखिरत में उसका जजा देगा। तो मैं अपने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा, अगर आपके पास कुछ अल्लाह ने दिया है जो लोगों की मदद कर सकते हैं तो बिबला सुबह आइए और जो क्षतिग्रस्त सैलाब ज़्यादा जो इलाके हैं वहाँ पहुँचिए, गरीब जरूरतमंदों की मदद कीजिए। जब आप मदद करेंगे तो उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी, जो मुस्कुराहट आएगी, जब आप देखेंगे तो जो आपको सुकून देगा, वो सुकून आप हजारों रुपया किसी दूसरे मसरफ के लिए खर्च करेंगे वो भी नहीं दे पाएगा। मैं नूर आलम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से खानाकुल इलाका से, एक सैलाब ज़्यादा गांव से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।